नमस्कार, मैं अंशिका वर्मा। आप देख रहे हैं एक्सपो मीडिया। आज हम आए हैं रेल ट्रांस एक्सपो 2025 में। ये इवेंट एक ग्लोबल प्रीमियर इवेंट है। ये फोकस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेलवे इंडस्ट्री को। ये हो रहा है प्रगति मैदान भारत मंडपम में। इसकी डेट्स हैं 26 से 27 जून और इसकी टाइमिंग्स हैं 10 to 6। आप चाहे तो बाय मेट्रो आ सकते हैं। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट। आप चाहे तो उन व्हीकल से भी आ सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज़ दी गई है, वो आपको मिलेंगी नियर गेट नंबर 5। अब चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं ब्रांड्स यहाँ पे आज क्या क्या शोकेस कर रहे हैं और क्या टेक्नोलॉजीज लेकर आए हैं जिससे इस इंडस्ट्री का रुख बदल जाएगा। चलिए, अगर ये एक्सपो विज़िट करना चाहते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी। आप जैसे स्कैनर देख रहे हो, इस स्कैनर से आप इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। डायरेक्टली आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे ना, आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्या पर्पस है आपका इसको विज़िट करने का। और अगर आप मैनुअली कराना चाहते हो, जैसे आप सामने देख रहे हो काउंटर है, आप मैनुअली भी करा सकते हो उसी स्कैनर से, एंड आप डिजिटली भी कर सकते हो उनकी डायरेक्ट वेबसाइट पर जाके और सेम बेसिक डिटेल्स फिल करके, जैसे नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्या पर्पस है आपका विज़िट करने का। देन आप यहाँ से बैजेस ले सकते हैं और उसके बाद आपको हॉल में एंट्री मिल जाएगी। और ये हो रहा है हॉल नंबर 12 में। अब हम हैं टेक्नोटॉक टूल्स के बूथ पर। ये यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं कॉर्डलेस रेल चैम्परिंग मशीन्स। और जैसे आप यहाँ देख सकते हो, कॉर्डलेस टॉक रेंच, कॉर्डलेस स्टैम्पिंग मशीन, रेल कोड ड्रिलिंग मशीन्स, कॉर्डलेस रेल बोल्ट टाइटनिंग मशीन्स। और अगर आप ये सारे प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी एंड वहाँ से आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं बिज़नेस पर्पस के लिए। और जो भी आप मशीनरी चाहे उसकी इंक्वायरी भी कर सकते हैं, वो सारी क्वेरी ले सकते हैं। क्या प्राइस रेंज है, क्या 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 बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप इनके साथ बिज़नेस करेंगे, वो सब आप जान सकते हैं उनकी वेबसाइट पर और कॉन्टैक्ट नंबर पर। My name is Ranit Rana, and I am the Associate Vice President looking after the business development of the ART segment, that is Automotive, Railways and Transportation. And what you guys are showcasing here today? So here we are showcasing the latest developments in the railways and the transportation segment. When we look at the latest development, it means how we can make the various vehicles, lightweight by almost 1 metric ton for the containers and for the road transport. And for the railways, how we can reduce the weight by 5 metric ton. Not only that, we are also making the products more corrosion resistant so that it can give a life. If you look at the buses, the containers, it can give a life, maintenance free life of more than 15-20 years. And if you look at the railways, it can give you a life of more than 40-50 years. Again, besides the life lightweighting and the corrosion resistance, with stainless steel we'll also get a lower carbon footprint, so it's going to make them more sustainable. And you would have read, PM Modi has mentioned that India wants to become a net zero emitter by 2070, and railways have a target of becoming net zero carbon emitter by 2030. So the more they adopt stainless steel, it's going to enable them to achieve the targets faster. Can you please show us what product you guys are showcasing? Yeah, so this is the stainless steel bus superstructure, and this is made out of a grade called JT or N7. Now the uniqueness of this grade is, it has got almost 3 times the higher strength of currently used galvanized material or carbon steel material. So you can make the superstructures lighter by almost 800 kg to 1000 kg per bus, and therefore they are able to carry a higher payload. Not only that, there's a lot of savings in terms of energy efficiency, and now that all the buses they're all moving towards the electric buses. Yes. So they are able to increase the battery life, because today the batteries are extremely costly, they're getting imported from China. So and secondly, it's a kind of a corrosion resistant material. So you can have a maintenance free life of more than 15 to 20 years. And now with all tenders, asking the suppliers to also maintain the buses, not only operate but maintain the buses for 12 to 15 years. So this is the grade which is finding a lot of traction among all the major OEMs. And can we move forward to that? Yeah. So this is the container in stainless steel. Again, the benefit, it's again a high strength stainless steel called JT or N7. Now, the major advantage of this material is you're able to lightweight the containers by almost 1000 kgs, and therefore the operators are able to carry 1000 kg more load, and therefore the payback is within 8 to 9 months.
And today, you know, Agarwal Packers and Movers, they have already developed one vehicle and they are plying on road. They are developing 5 more containers in stainless steel at Pune, and this year they have plans of converting 500 containers in stainless steel. CJ Darcel, one of the the leading logistics provider, they have already put 50 stainless steel containers, lightweight stainless steel containers, on road since August September last year, and they are so happy with the performance. Now they are converting another 130 vehicles completely in stainless steel. So ये भी सेम है या it So has this is different. This is for the the Vande Bharat coaches, which Indian Railways is now bringing into the system. So this is made out of a high-strength austenitic stainless steel. Now, currently, if you look at the passenger coaches, they are made out of ferritic stainless steel. So this, the advantage of this high-strength austenitic stainless steel is it has got almost 2 times the strength, and therefore you can reduce the weight of these coaches by almost 5 metric ton. Secondly, it is a much more corrosion resistant material, and therefore it is expected to give a life of more than 40 to 50 years. When you compare this with aluminium made coaches, aluminium gives you a weight reduction of roughly about 2 to 2.5 tons. So this can give you a weight reduction double that of aluminium at 1/3 the cost. So not only Vande Bharat, today Indian Railways have also specified the bullet trains which they are coming up with completely in austenitic stainless steel, high strength austenitic steel. So this is the bogie frame in stainless steel. Right now what's happening is it's made out of carbon steel, and there is so much of corrosion that the entire bogie, almost 50% of the bogie frames are getting changed after 4 to 5 years, and after 9 to 10 years 100% of the bogie frames in carbon steel are getting changed. So with this stainless steel, bogie frames, first of all, it will address the corrosion problem, and therefore this is going to give you a life of 35 to 40 years. So the railways, we did a complete life cycle benefit analysis. So the railways will stand to gain almost 30 lakhs per coach utilizing this stainless steel bogie frame. So this is again a tip trailer in stainless steel. We are seeing a lot of demand for this tip trailer in Gujarat, like Gandhidham, where it is being used for carrying salt. So if you look at, they were earlier using carbon steel tip trailers, and they were getting completely corroded after 4 to 5 years. So they had to overhaul the complete body with stainless steel tip trailers, and they are using a grade called 304. Till 6 years, it's been running fine, and they're expecting a life of almost 10 to 12 years. कोई टेक्नोलॉजीज आप लेकर आने का सोच रहे हो इस सेक्टर को बेटर करने के लिए? Yes. So we have come out with a new grade called 415. It's an international grade of stainless steel, which has almost 3 times the strength of the currently used 304 or carbon steel. So, and plus the corrosion resistance is almost equivalent to that of 304. So that material could be used not only to fabricate lightweight bodies, but also to fabricate the lightweight chassis as well. So it's going to give you a weight reduction of almost 1000 kg to 1500 kg per vehicle. So that will be a great benefit for the end users. आप लोग कितने टाइम से यहाँ एग्जिबिट कर रहे हो? We have been exhibiting at Urban Infra. In Rail Trans Expo, yeah. Yeah, so we have been, this is the second or third year, we are participating in this Urban Infra, this Rail Transit Expo. कैसा आपको रिस्पॉन्स आ रहा है ऑडियंस The से? response is extremely good, and we are seeing a lot of good participation, and we are also seeing a lot of good speakers and dignitaries participating in the conferences. So it's been a very good experience till now. आप लोग नेक्स्ट ईयर भी एग्जिबिट करना चाहोगे? Surely we would definitely, we have plans, and we will see. What is your website if anyone wants to contact you? So it's www.jindalstainless.com. That's our company website, and we've got our company brochure. So all the contact details are mentioned over there, so they can just put in a request or send in a mail, and we'll be in touch with them. As sir just told you about the website, you can check out in the description box. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. अब हम हैं डायनेमिक इंटरप्राइजेस के बूथ पे। ये जो कंपनी है ये बेस्ड है पुणे बेस्ड, और आज वो यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं डीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, मैग्नेटिंग लैचिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, डीसी कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स एंड रेलवे स्विचेस।
और डायनेमिक ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। अगर आप ये सारे प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो या आप इनके साथ बिज़नेस के लिए जुड़ना चाहते हैं, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिलेगी अगर आप इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं, आप इनकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं, वो आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पे वो एक और प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं जो है रेलवे HT अर्थिंग स्विचेस। आप ये सब कुछ जान सकते हैं उस वेबसाइट के थ्रू, वहाँ पे आपको नंबर मिलेगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जितनी भी क्वेरीज़ हैं आप वो सारी उनसे बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। तो ज़रूर चेकआउट करिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। My name is Shailesh Gorupade and I am from Pune. सर आज आप क्या प्रोडक्ट यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं? ओके बेसिकली इस एक्सपो में हम हमारा मास्टर कंट्रोलर जो कि लोकोमोटिव में जा रहा है, तो वो एक डिस्प्ले कर रहे हैं जो कि हमारा यूनिक प्रोडक्ट है। उसके साथ है हमारा पावर पोटेंशियोमीटर जो कि अगेन लोकोमोटिव एप्लीकेशन के लिए है। और उसके अलावा हमारे पास काफ़ी सेंसर्स है जिसमें पोटेंशियोमीटर, एक एंगल सेंसर्स है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेंसर है, क्या आप एक बार एलईडी है। दिखा सकते हैं? यस बिल्कुल। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा मास्टर कंट्रोलर, आप देख सकते हैं। इसमें आप अलग अलग पोजीशन देख पाएंगे। ये की है मास्टर कंट्रोलर का, तो जिससे लोको पायलट वो की अपने पास रखता है और जब ऑपरेट करना होता है तो वो की के साथ स्टार्ट करता है। तो ये लीवर है, इसके साथ वो एक्चुएशन यानी फॉरवर्ड रिवर्स मूवमेंट कंट्रोल कर सकता है और ब्रेकिंग भी उसी से कंट्रोल होता है। और इसमें ये पोटेंशियोमीटर दिया है। ये पोटेंशियोमीटर ब्रेकिंग का लेवल सेंस करता है और फीडबैक देता है। उसके हिसाब से रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है वो अप्लाई होता है कि कितना लेवल का रीजनरेटिव ब्रेकिंग अप्लाई करना है वैसे। तो ये एक यूनिक प्रोडक्ट है और हम ये दे रहे हैं अभी वैपटेक को फॉर द डीजल लोको। देन अगेन यू विल फाइंड मोर प्रोडक्ट्स ऑन दिस साइड। ये आगे जो है वो एलवीडीटीज़ है जिसमें हमारे पास क्वाड्रोप्लेक्स, जी। ट्रिप्लेक्स, बिल्कुल डुप्लेक्स, सिम्प्लेक्स, ऐसे अलग अलग एलवीडीटीज़ हैं जो कि हमारे काफ़ी सारे क्रिटिकल एप्लीकेशन में जाते हैं। जैसे कि डिफेंस के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है जिसमें उनको काफ़ी हार्श एनवायरनमेंट रहता है, तो वहाँ पे हम वो फुलफ़िल करते हैं रिक्वायरमेंट्स उनकी। और आप देख पाएंगे कि लीनियर पोटेंशियोमीटर है, एंगल सेंसर्स है, एंगुलर पोटेंशियोमीटर है, अलग अलग टाइप के अलग अलग सेंसर है जिसमें टेम्परेचर सेंसर है, प्रेशर सेंसर है, स्पीड सेंसर है। तो ऐसे ऐसे अलग प्रोडक्ट रेंज है हमारे पास जो कि हम सप्लाई करते हैं अलग अलग कस्टमर्स को। हम लोको में सप्लाई करते हैं, लोकोमोटिव में, डिफेंस में सप्लाई करते हैं, ऑटोमोटिव में सप्लाई करते हैं, इंडस्ट्रियल में सप्लाई करते हैं। तो हम काफ़ी सेक्टर्स को ये सप्लाई करते हैं। सर क्या टेक्नोलॉजीज आप लेकर आने का सोच रहे हो जिससे सेक्टर बेहतर बनेगा? बिल्कुल। तो ये जो हमारे पास ये हमने अभी जो टेक्नोलॉजी डिस्प्ले किया है ये एक यूनिक टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी जो है इसमें क्या होता है कि जो हमने उसका नाम ही पावर पोटेंशियोमीटर दिया है। इसमें हीट ज़्यादा जनरेट होता है, तो वो हीट हैंडल करने के लिए हमने ये डिज़ाइन किया है। और हम प्राउड से कहते हैं कि दुनिया में हम अकेले हैं कि जो ये स्पेसिफिकेशन मीट कर पाए और हम ये सप्लाई कर रहे हैं। हमारे अलावा किसी के पास ऐसा टेक्नोलॉजी इसमें नहीं है, तो जो ज़्यादा करंट हैंडल कर पाए और उतना हीट डिसिपेट कर पाए। तो हमने ये अच्छे तरीके से डेवलप किया है और हम ये ग्लोबली सप्लाई कर रहे हैं। सर कितने टाइम से आप लोग यहाँ एग्जिबिट कर रहे हैं ट्रेल ट्रांस एक्सपो में? ये हमारा पहला साल है। ये पहले साल अभी हमने रिसेंटली इसके बारे में सुना और फिर पार्टिसिपेट किया है। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपको ऑडियंस से? रिस्पॉन्स अभी तक अच्छा है और कल आई थिंक और बेहतर हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट ईयर भी आप लोग एग्जिबिट करना चाहेंगे? यस, देखें ये दो दिन के रिस्पॉन्स के ऊपर हम चेक करेंगे और फिर डेफिनेटली हम उस पर कॉल लेंगे। आपकी क्या वेबसाइट है जिससे बिजनेस पर्पज़ के लिए आपको लोग कांटेक्ट कर पाएँ? हमारी वेबसाइट है www.uniautomation.com। तो इससे आप हमारी तरफ पहुंच सकते हैं। और हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है पुणे में, एक प्लांट है हमारा, और एक प्लांट है हमारी सिस्टर कंसर्न कंपनी है जो स्विट्ज़रलैंड में है। और हमारे पास जो हमारा सिंगापुर में भी एक ट्रांसपोर्ट हब है, वहाँ से भी हम ग्लोबली सब जगह पे सप्लाई करते हैं। जैसे सर ने अभी आपको वेबसाइट बताई, वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ज़रूर चेकआउट करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। अब हम हैं आशीष इंटरनेशनल के बूथ पर। आशीष इंटरनेशनल जो है एक रिनाउंड कंपनी है जो मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट करती है फ्लेक्सिबल चैनल सपोर्ट्स को। आप जैसे यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे चैनल सपोर्ट शोकेस कर रहे हैं वो, और आप कस्टमाइज़ भी करा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर साइज़, जो भी आपको चाहिए। और वो फैब्रिकेशन भी करते हैं। फैब्रिकेशन जो यूज़ की जाती है सपोर्ट में, बिल्डिंग्स के सपोर्ट के लिए वो सब। और जैसे कोई मटेरियल आपको बनवाना है, वो मटेरियल आपको किस में चाहिए, कौन सी फॉर्म में चाहिए, वो भी आप लोग करवा सकते हो। यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और जैसे आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम्स ये डिफरेंट साइज़ेस के होते हैं। आप कस्टमाइज़ करा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बिल्डिंग, किस बिल्डिंग के लिए आपको यूज़ करने हैं इन सपोर्ट सिस्टम्स, इन चैनल्स को, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। और अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं बिज़नेस पर्पज़ के लिए, तो आप इनकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं, वो आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी अगर आप उनके साथ बिज़नेस करना चाहते हैं।
सो हमारे डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट करें। My name is V. Devakumar. I am from Pondicherry. So, we are for the rail trains exhibition for this time. So, we are presenting our product. This is the windshield, so which will be using for the railway industry actually. So, I am just explaining the parts of the train. Okay. So, this is the windshield which will be coming in the front part of the train, and this is the head code which will be coming on the top side of the train actually. Okay. And this is the light glass. In front of the light glass, this glass will be placed. Okay, and this is the side windows actually, so that the railway driver has a cabin in that left hand side or side glasses. This is a very special glasses which is used in the trains. This is for the complete Vande Bharat Express actually. So this is for the DGU glasses, and we can able to use for the windows actually. This can be slided up and down, so that it can be useful for the safety of the passengers, and we can use as a windows for the safety, and we can use this for this blind can be made up and down side also, ma'am. So this is very useful, and this is for the roof of the train, so we can switch on and we can switch off. This will be what to say mean changing from opaque to the clear. When we want to see the outside view when you are in the train, this glass can be used actually. So this is one of the interesting glasses which we can make locally. What technologies you are thinking to bring for betterment of this sector? So for the betterment of the sector, we are making some dimming technology where the light which is coming inside, we can able to control the light. So that is the technology which we are working further actually. So that is a very interesting sector, and railway developments also is happening more. And like how you said one point, this rail windshield, we are making some ion exchange glass which is used for the safety of the railway driver. That is also we are working. The upcoming days we will bring that glasses in the railway industries. कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपका ऑडियंस इस एक्सपो में? This audience, ma'am, this audience, we have one FRP manufacturer. That is one of the audience, and I am expecting some railway peoples to visit this exhibition, ma'am. Actually, आप लोग नेक्स्ट ईयर पे एग्जिबिट करना चाहोगे? I think we can participate, ma'am. एंड आपकी क्या वेबसाइट है अगर कोई भी आपसे कांटेक्ट करना चाहे बिजनेस? www.tprsglass.com. जैसे सर ने आपको वेबसाइट बताई, वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसको ज़रूर चेकआउट करें। थैंक यू सो मच। Yes, nice meeting you, ma'am. Nice. Thank you. अब मैं रेल व्हील फैक्ट्री के बूथ पर, ये जो ब्रांड है ये है बैंगलोर बेस्ड, और वो आज यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं व्हील सेट असेंबली, और ये खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, कहीं से भी इंपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे पार्ट्स वो कहीं से इंपोर्ट नहीं करते। और अगर आप इनसे जानना चाहते हैं क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अगर आप इनके साथ काम करते हैं, तो आप उनकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, और उसकी वेबसाइट में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगी, आपसे चेकआउट कर सकते हैं और क्वेरी के लिए बात कर सकते हैं, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी उसके लिए भी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ व्हील्स शोकेस कर रहे हैं जो कि हेल्प करेंगे रेलवे सेक्टर में, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट करें। माय नेम इज़ विकास मिश्रा। मैं हुबर एंड सूनर में सेल्स हेड हूँ फॉर रेलवे बिजनेस। आज यहाँ पे आप क्या क्या प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग बेसिकली हुबर सूनर के रेलवे एप्लीकेशन में जाने वाले सारे प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग 3 ब्रॉड टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते हैं। पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी, दूसरा ऑप्टिकल फाइबर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉपर बेस्ड सॉल्यूशन, जिसको हम लो फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। क्या तो बता सकते हैं? हाँ जी, ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये ऑप्टिकल फाइबर्स के हैं सारे, जिसमें मेनली हम लोग ट्रेन के अंदर की चीज़ें जो कि रोलिंग स्टॉक में आती हैं, प्लस ट्रैक साइड चीज़ें जो अक्रॉस द ट्रैक जो सारा नेटवर्क होता है, नेटवर्क कम्युनिकेशन, वो ट्रैक साइड एप्लीकेशंस में आता है। तो इसके अंदर हम, अगर आप जैसा ये चार्ट देख रहे हैं, इसके अंदर हम लोग जैसे ट्रैक साइड में जैसे अक्रॉस द ट्रैक कुछ टावर इंस्टॉल हुआ, इसमें सारे जो कनेक्टिविटी है एंटीना से लेके रेडियो तक की पूरी कनेक्टिविटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। देन इसमें लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस होते हैं। देन एंटीनास के अलावा हमारे कुछ ट्रांसीवर्स होते हैं जो हमने यहाँ डिस्प्ले किए हुए हैं। देन कॉपर केबल्स या ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं, और आरएफ की केबल सिस्टम्स होते हैं जो हम लोग ट्रैक के अक्रॉस, स्टेशंस के अक्रॉस और ट्रेन के अंदर ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम एक राउंड लें, आप देख सकते हैं कि इसके अलावा जैसे ये एक एंटीना है, ये काफ़ी बड़ा एंटीना है जो एक अराउंड 40-50 मीटर्स के टावर में हम इंस्टॉल करते हैं अक्रॉस द ट्रैक।
इसको हम एक ट्रैक साइड एंटीना बोलते हैं। रेलवे के ऊपर, कोच के ऊपर या लोको के ऊपर जो एंटीनाज लगते हैं फॉर वाईफाई कनेक्टिविटी, फॉर कम्युनिकेटिंग, जो ट्रैक साइड के एंटीना से कम्युनिकेशन होता है, उसके लिए रेलवे के रूफ टॉप पे एंटीनाज लगते हैं। तो वो एंटीना जैसे आप देख सकते हैं कि हमने इस पिक्चर में डेमोन्स्ट्रेट किया है। जैसे आप अगर देखें, जैसे कुछ एंटीनाज, जैसे मैंने आपको ये ट्रैक साइड का बताया, ट्रैक साइड के एंटीनाज की कम्युनिकेशन जो रेलवे लोकोमोटिव्स पे लगे होते हैं, इन एंटीनास के साथ होती है। इन्हीं की वजह से ट्रेन के अंदर हम पैसेंजर्स को नेटवर्क मिलता है, या कई कई जगह वाईफाई सिग्नल्स मिलते हैं, तो वाईफाई और सेलुलर नेटवर्क्स के थ्रू वो कनेक्ट होते हैं। तो इसके लिए एक पूरा बैकबोन में सारी चीज़ें प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, चाहे वो एंटीनाज हों, उसके एसोसिएटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी, कॉपर या ऑप्टिकल केबल्स हों, ये सारा मिलके हमें पैसेंजर को एक सीमलेस नेटवर्क प्रोवाइड करता है। तो हम इसी के लिए काम करते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें, यहाँ में डिफरेंट टाइप्स की फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं, फिर कुछ ईथरनेट केबल्स हैं, देन कुछ थिक कॉपर केबल्स हैं जो हम हार्डनेस फॉर्म में रेलवेज़ को सप्लाई करते हैं, उसके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, वो हम यहाँ देख सकते हैं। देन इसके अलावा हम यहाँ पे अगर देखें तो रेलवेज़ के लिए कुछ ईथरनेट स्विच हैं, जो अल्टीमेटली अगर आप इधर देखें, ये स्विच लोगों के अंदर लगता है और इसके साथ सारी कनेक्टिविटी कोच टू कोच हम लोग सप्लाई करते हैं। ये जंपर सिस्टम जो 2 कोचेस के बीच में लगता है पूरी कनेक्टिविटी के लिए, चाहे वो ऑप्टिकल हो चाहे कॉपर बेस्ड सॉल्यूशंस हो, हम ये सारा इन हाउस हमारा डिज़ाइन है और इन हाउस ही मैन्युफैक्चरिंग है। सर, क्या टेक्नोलॉजीज आप लेकर आने का सोच रहे हो जिससे ये सेक्टर बेटर होगा? हम लोग इस समय अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं। जैसे एंटीना में हम लोग इस समय UHF फ्रीक्वेंसी बैंड वाले एंटीनास पे काम कर रहे हैं, कवच प्रोजेक्ट में जो काम आता है। आगे हम लोग LTER फ्रीक्वेंसी बैंड में काम कर रहे हैं। देन फ्यूचर जो FRMCS है, इंडिया में जब भी आए, यूरोप के कुछ देशों में अभी उस पर काम चल रहा है, तो आने वाले टाइम में FRMCS पे काम होगा, जिसके लिए हम लोगों के प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस या तो अभी हैंडी हैं या अभी इन डिज़ाइन है। तो सारी टेक्नोलॉजीज जो अपकमिंग इंडियन रेल सेक्टर में आने वाली हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, वी आर रेडी विद दैट एंड वी आर राइट नाउ वर्किंग ऑन लॉट्स ऑफ डिज़ाइन आल्सो। तो ये वाला सेक्शन जैसे हमारा है, इसके अंदर हम लोग रेल रूफटॉप एंटीनाज डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ये एक हमारा एंटीना है, अगर आप इसको देखें, ये एक एक्टिव एंटीना है। एक्टिव एंटीना मीन्स इसके अंदर ना सिर्फ एक ट्रेडिशनल पैसिव एंटीना है, बल्कि वाईफाई एक्सेस पॉइंट, राउटर सब इसके अंदर इनबिल्ट है। तो इसके साथ आपको ट्रेडिशनली अलग अलग चीज़ें लेनी पड़ती हैं, बट इसमें आपको वन बॉक्स के अंदर सारे सॉल्यूशन आ गए। तो ये हम एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। देन ये एक GSM रिजेक्ट फ़िल्टर है। फ़िल्टर्स रेडियो के कंजक्शन में काफ़ी यूज़ होता है। ये भी हम लोग इन हाउस बनाते हैं अपनी मानेसर फैक्ट्री में। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स भी हैं जो आने वाले टेक्नोलॉजीज़ के लिए, चाहे वो LTER हो या FRMCS है, इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और एक तरह से रेलवे में जो एडिशनल इक्विपमेंट्स का बोझ है वो ये कम करता है। वन इक्विपमेंट फिट्स ऑल फॉर द सीमलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी। एंड आप लोग रेल ट्रांस एक्सपो में कब से एग्जिबिट कर रहे हैं? रेल ट्रांस में ये हमारा सेकंड टाइम है, बट इससे पहले हमने कुछ सालों पहले एग्जिबिट किया था। दिस इज़ आवर सेकंड टाइम। एंड कैसा रिस्पांस आ रहा है आपको ऑडियंस अभी आज फर्स्ट डे है, अभी तक तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। एज यू कैन सी क्राउड भी है हमारे बूथ में और अभी तक काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप लोग नेक्स्ट ईयर भी एग्जिबिट करना चाहोगे? डेफिनेटली करना चाहेंगे। सर, आपकी वेबसाइट क्या, अगर कोई भी कांटेक्ट करना चाहे? हाँ जी, www.huber.suner.com। सर ने जैसे अभी आपको वेबसाइट बताई, वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसको ज़रूर चेकआउट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मैंने जो आपको सारी ब्रांड्स एक्सप्लोर कराई, क्या क्या वो प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, सब कुछ दिखाया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, इस वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखें।